Hi guys. We have been receiving a lot of queries from students regarding mathematical typing, like how to type in Word, what all notations to use. Is there any standard notations that we have to use, or we can use our own notations? Is equation editor compulsory? So to answer all these queries, I decided to make this particular video. So for all those who are giving the exam, online exam for the first time, especially to CS1 and CM1 students. If you're giving the exam for the first time, then this video is for you guys. Basically, you need to understand that how you need to do mathematical typing. In this entire video, I will be covering on the basic notations that we have to use while we are typing in MS Word. Basically, we would be focusing on things that can make you, that you can easily type on words that will require less of time, and you can keep your focus on the concepts rather than on notations. तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि मैथमेटिकल टाइपिंग एक्चुअली में कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैथमेटिकल टाइपिंग अब किसी ने अगर CS1 क्लियर किया है तो उसको पता है, हाँ अगर मैं CS2 उठा रहा हूँ या मैं CM2 उठा रहा हूँ या मैं CM1 उठा रहा हूँ तो आई कैन इजिली मैनेज। ठीक है। अब बट किसी ने अगर CT8 क्लियर किया हुआ है, और सॉरी CT8 पहले दिया था, अब नहीं क्लियर हुआ, आप CM2 प्लान कर रहे हो, तो आपके लिए एक न्यू एडिशन है कि अगर आप एक सब्जेक्ट आपको रिवाइज करने के लिए भी आपको मैथमेटिकल टाइपिंग से वेल वर्स्ड होना है. So for all those who are yet not versed with the things that you need to take into consideration while typing in MS Word, this video is for you guys. So just make sure that you are trying to understand what I am trying to say. हमें कुछ रूल्स ध्यान में रखने हैं. अब गिवन द एग्जाम्स आर ऑनलाइन, ठीक है, तो हमें सिर्फ वर्ड के अंदर ही टाइप करना है, वेदर वी आर डूइंग गिविंग इट फ्रॉम आई और वी आर गिविंग इट फ्रॉम IFOI, वी हैव टू फोकस ऑन दी ऑनलाइन टाइपिंग. नाउ फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स दिस सीम्स टू बी वेरी इजी, क्योंकि आपके लिए कोई स्पेशल सिंबल्स हमें थ्योरी सब्जेक्ट्स में यूज नहीं करने. तो चाहे वो CB1 है, चाहे वो CB2 है, चाहे वी हैव CP1 or we have CP3 or STs or essays, we are not concerned with these subjects because it's just the normal typing on MS Word. We don't require any specific symbols. CB2 के अंदर graphs होते हैं, but if you are well aware of the subject, graphs have been eliminated, so you won't be tested on making of graphs for CB2 subject. Similarly, if for any subject which requires specific graphs, like CS1 में starting ही chapters में आपको कोई graph बनाने के लिए नहीं आएगा, you won't be tested on that. But yes, now coming to numerical subjects, especially जैसे CS1 है, CS2 है, CM1 है, CM2 है, अब इन subjects के लिए हमें standard notations को refer करना है. मोस्ट ऑफ यू हैव दिस डाउट कि क्या हमें वही शीट रेफर करनी है जो हमें IFOI ने दी है, या फिर हम इक्वेशन एडिटर भी यूज कर सकते हैं. तो यस, first thing is you can use equation editor if you want to. Now for all those who are new to this field, you might not be aware of equation editor, and you don't even need to learn. So IFOA has clearly mentioned that in case you want to use equation editor, you can go ahead with that. But if you don't know it and you don't, मतलब already आपके पास एक subject है पढ़ने के लिए, तो अगर मैं आपको नया चीज अगर आपको सीखना है तो मैं नया चीज आपको दोबारा से इक्वेशन एडिटर सीखने के लिए नहीं बोलूंगी. सो इफ यू नो इट, गो अहेड, बट इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, देन इतना ज्यादा आपको पेन लेने की जरूरत नहीं है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड नोटेशंस. हम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करेंगे. हम ऑनलाइन टाइपिंग को सिर्फ इस तरीके से रखेंगे कि एनीवन कैन डू इट. ठीक है, तो मैं अब आपको बहुत इजी सी नोटेशंस सिखाऊंगी. सो जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट रिमेंबर दीज नोटेशंस थ्रू आउट योर एग्जाम. व्हाई वी डिसाइडेड टू प्रिपेयर द वीडियो इज बिकॉज यू नो दैट for all the students, for especially to the Tajians, we know that we have assignments and UT's date approaching near. So अगर आप assignment की आपकी deadline approach कर रही है, you have the schedule with you on your software. So if your assignment deadline is approaching, we expect from you guys that you are doing your assignment in typical exam style pattern only. Similarly, अगर UT की date scheduled है, आपका UT is then scheduled है, तो we expect that UT has to be on MS Word only using this online typing system. So no UT, no assignment will be accepted if it is instead of type, if it is a handwritten assignment, we won't be accepting that. तो आपको assignments और UTs भी अपने उसी तरीके से करने हैं as if you are writing an exam. ठीक है. एंड UT सबमिट करने से, मॉक सबमिट करने से आपको क्या हेल्प मिलेगी?
while we are checking these things, apart from your conceptual thing, we will be checking on this typing things as well. What all steps you are using, how you are presenting your steps, which steps you are eliminating, which step you are basically focusing upon. Are you cutting short of any notations, are you just using your own shortcuts? So we will be checking on all these things, so you can leave all these things to us, but just pay attention to some of the standard notations to be used. अब क्या क्या स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं जो हमें ध्यान में रखनी है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो इधर यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, लेकिन हमें वो ऑप्शन चूज करना है विच कैन मेक इट लेस लेंथी. मुझे टाइम कंज्यूमिंग ऑप्शन, मुझे टाइम सेविंग ऑप्शन चूज करना है. तो अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है या मल्टीप्लाई लिखना है तो आई कैन टाइप मल्टीप्लाई एज वेल, दिस इज ऑल्सो इक्वली एक्सेप्टेड, और यू कैन डू इट लाइक दिस एज वेल. अगर आपको डिविजन लिखना है, डिवाइड लिखना है, यू कैन ईदर टाइप इट और यू कैन यूज दिस सिंबल. अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ, लेट सपोज हम लोग बोल रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आया. स्टैंडर्ड डेविएशन में आपने आपको बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. आपको क्वेश्चन में वेरिएंस गिवन, तो यू कैन ईदर टाइप स्क्वायर रूट ऑफ, लेट सपोज 55, दिस इज ऑल्सो इक्वली एक्सेप्टेबल, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो SQRT 55. तो these are the shortcuts which are accepted in your exam. तो स्क्वायर रूट के लिए we can write SQRT. मुझे एक्सपोनेंशियल 28 की वैल्यू लिखनी है, I can write EXP 28 because I cannot, अब मैं E28 मेरे लिए वर्ड में लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो make it easy, just write it at EXP 28. म्यू लिखना है आपने, ठीक है. अब ये स्पेशल नोटेशन है, ये स्पेशल सिंबल्स है, ये जो ग्रीक्स वाले हैं ये स्पेशल सिंबल्स है. आपके पास वर्ड में ऑप्शन है सिंबल्स इंसर्ट करने का, बट वी वोंट रिकमेंड दैट. रीजन बीइंग, इतना टाइम नहीं है हमारे पास. जितना इजी रहोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है. सो जस्ट मेक इट इजी. आप इसको म्यू लिख दो, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. सिग्मा लिखना है, अगेन अ स्पेशल सिंबल, कैन बी इंसर्टेड ऑन वर्ड, but you can simply write it as SIGMA. बीटा लिखना है, BETA. नेक्स्ट, फॉर ऑल दोस्त जिनको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करना है, ठीक है, इट इज यूज फॉर CS1, फॉर CS2, फॉर CM2 कैंडिडेट्स. 5D1 लिखना है. अब ये 5 बनाना मुश्किल है वर्ड के अंदर, we can write it as 5D1, this is acceptable. थीटा बनाना है आपने, ठीक है, थीटा लिख दो. डेल्टा लिखना है, D डिवाइडेड बाय DST. अब बहुतों को ये कंफ्यूजन होती है कि जैसे कोई चीज मुझे DST लिखनी है, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यू कैन राइट इट लाइक दिस, DST, और यू कैन यूज सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट. सो यू कैन यूज सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट. अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में दिखानी है इस तरीके से तो वी कैन यूज सबस्क्रिप्ट. अगर कोई चीज लेट्स सपोज बाय x दिखाना है, वी कैन यूज सुपरस्क्रिप्ट. सो ये सब कुछ हमारे हाथ में है. इट हैज बीन स्पेसिफाइड, सम स्टैंडर्ड्स हैव बीन स्पेसिफाइड, इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू यूज देम. ठीक है, डेरिवेटिव करना है. लेट्स सपोज आपको पता है हम डेरिवेटिव के लिए df by dx करते हैं. You can do it like this. You can do df by dx. This is acceptable. You can write first derivative of function with respect to x. ये भी acceptable है. अगर आपके पास टाइम है आप इसको ये लिख लो, ये भी acceptable है. आपको पता है सेकेंड डेरिवेटिव इज डिनोटेड एज डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर. अब ये दिक्कत है इसको वर्ड पे टाइप करने के लिए, क्या लिख सकते हैं? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ function with respect to x. So just note it down, 2 more minutes. You can just note these things. ये डेरिवेटिव तो बहुत ही कॉमन है, हर बार आएगा ही आएगा, ठीक है. तो आपके पास ऑप्शन है either use df by dx or just type it. It's up to you, whichever you feel convenient, you can go ahead. CM1 स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी बहुत बार यूज होएगी. सपोज करो ये डिनोट कर रहे हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी PXY. अब XY ऐसे लिखना दिक्कत है, क्या लिख सकते हैं? PXY, आप ऐसे लिख दो. नॉर्मल PX लिखना है, ऐसे लिख सकते हो, इट इज एक्सेप्टेबल.
बट ये ध्यान रखना कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट का स्निपिंग, बिकॉज द एग्जाम्स आर ओपन बुक, दैट मीन्स यू कैन ओपन योर कोर रीडिंग, ठीक है। अब आप वहां से स्निपिंग टूल से कुछ कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, तो स्निपिंग टूल इज नॉट अलाउड इन योर एग्जाम, यू कैन नॉट स्निप एनीथिंग, जस्ट अवॉइड दैट। आपको टाइप करना है, अगर स्निप ही करना है तो फिर वो मैथमेटिकल टाइपिंग की इंपॉर्टेंस क्यों रख रहे हैं, फिर वो क्यों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ला रहे हैं, ठीक है। अब लेट सपोज मुझे एक्स बार है, ठीक है, एक्स बार करना है, या कुछ भी हमें मीन वैल्यू दिखानी है, वी कैन सिंपली टाइप इट एज एक्स बार। सिग्मा स्क्वायर दिखाना है, यू कैन डू सिग्मा स्क्वायर। जैसे सपोज करो CS1 स्टूडेंट्स n-1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर, हम बहुत बार ये यूज करते हैं, आई कैन राइट इट एज n-1 डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। डिवाइड भी नहीं लिखना, n-1 डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। जितना चीजों को आप इजी लोगे, जितना कैजुअल सोचोगे, उतना कैजुअली आप लिख पाओगे। जितना उसको ये सोचोगे यार मैं इसके लिए क्या सिंबल यूज करूं, उतना वो आपके लिए डिफिकल्ट बनता रहेगा। तो टेक योर सिंबल्स वेरी इजीली। नेक्स्ट इज वेरी कॉमन थिंग, इंटीग्रेशन के लिए अब क्या करेंगे। अब इंटीग्रेशन के लिए आपको पता है, लेट्स सपोज a to b x dx, लेट्स सपोज मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो आई कैन डू इट एज इंटीग्रेशन ऑफ x और इंटीग्रेशन a to b x dx, आई कैन डू इट लाइक दिस, a to b f dash x dt। सपोज करो मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो आई कैन सिंपली टाइप इंटीग्रेशन a to b f dash x, sorry, fx dt. Clear? So just note this down as well. Another Greek symbol lambda आएगा, बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पर इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, you can simply type lambda। CS1 and CS2 chi-square distribution, बहुत बार आएगा chi-square distribution लिखना, so chi-square n, I can simply type it as chi-square n with dash degrees of freedom। तो जो हम लोग बोलते हैं बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, हाउ वी आर प्रेजेंटिंग नोटेशंस, जिस सिंबल को हम जिस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं बेसिकली वही उसकी रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट सपोज करो आपको कंबाइंड मीन निकालने के लिए बोला है, जैसे आपने दो चीजों का मीन निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स से इंटू EA प्लस एक्स बी इंटू EB, ये आपके CS1 में भी होता है, CM2 में भी होता है, ठीक है। एवरी टाइम वी डू नॉट लाइक दिस। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, एक्स से EA प्लस एक्स बी EB, आप इसको ऐसे कर लो। सेम गोज फॉर सिग्मा स्क्वायर, मान लो अगर कंबाइंड वेरिएंस निकालना है, एक्स स्क्वायर A VA प्लस एक्स स्क्वायर B VB प्लस 2x से XB कोवेरियंस A, B। So guys, 2 minutes for noting it down. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। सपोज करो आपको बोला है x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसको हमने लिखना है, आप सिंपल लिखो x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आप कर रहे हो, सपोज करो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 100, ठीक है, वेयर x फॉलोज नॉर्मल, हमने ऐसा लिख दिया, कन्वर्टिंग इट टू स्टैंडर्ड नॉर्मल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू, देखो म्यू में कैसे लिख रही हूँ, डिवाइडेड बाय सिग्मा ग्रेटर देन 100 माइनस जो भी म्यू की वैल्यू है, जो भी सिग्मा की वैल्यू।
So probability of z greater than, let's suppose, 5. It is equal to 1 minus probability of z less than 5. 1 minus 5. Why I am showing you all this thing is, supposingly in exam you are asked to find out probability of x greater than, let's suppose, 100.5. आपको कोई म्यू की वैल्यू गिवन है, कोई सिग्मा की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल पेन पेपर में स्टेप्स अपने लिखते हैं, बेसिकली आईएफओ सेज यू जस्ट टू सेव योर टाइम you can skip on the unnecessary steps, but इसका मतलब ये नहीं है, because whenever we say this thing to students, what students do it कि अगर अच्छा चलो ठीक है probability of x greater than 100.5 है, बच्चा मुझे सीधा final answer दे देता है, मुझे वो नहीं चाहिए। अगर आप final answer दे रहे हो तो फिर IFO, how will IFO be assessing your mathematical typing? उनका यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम करने का एक रीजन ठीक है कोविड है, बट उसके अलावा रीजन ये भी तो था कि वी कैन असेस स्टूडेंट्स ऑन ऑनलाइन टाइपिंग थिंग एज वेल. So how will they assess this thing if you are skipping on all the steps? So you don't have to skip on all the steps. You just have to see which step is important and which step is not important. Which step is basically a repetition. तो अगर आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेप एक तरीके से रेपिटेशन है, मतलब मैं सेकंड स्टेप में भी वही कर रही हूँ, बस फर्स्ट स्टेप में मैंने सिंबल्स यूज करे और सेकंड स्टेप में मैंने उसकी वैल्यूज यूज करे, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट रिपीटिंग द टू स्टेप्स जो आपने सिंबल्स यूज करे हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे इस स्टेप को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, हम इसमें कैसे लिख सकते हैं, ये हम स्टेप यूज कर सकते हैं, इस स्टेप के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, कन्वर्टिंग टू स्टैंडर्ड नॉर्मल, जो नॉर्मल हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, एंड 1 माइनस दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 5. अब मेरे को ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसमें आंसर लिखूंगी तो भी इट विल वर्क. तो आपको अब ये खुद आइडेंटिफाई करना है कि एज एन एग्जामिनर इफ यू आर चेकिंग ऑन दी पेपर, तो विच स्टेप डू यू थिंक इज important and which step is not important. So yes, intermediary steps which are not relevant can be skipped, बट ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कैलकुलेशंस दिखा रहे हो या आप पूरी डेरिवेशंस दिखा रहे हो, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है. इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप सारी डेरिवेशंस लगाओगे. आपका पेपर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट होना चाहिए, तभी यू कैन होप फॉर कि हाँ मेरा पेपर निकल जाएगा. सो कंसिडरिंग ऑल द वर्स्ट सिनेरियो और कंसिडर टू बी ऑन अ प्रूडेंट साइड, जस्ट एम कि दैट आई एम एबल टू अटेम्प्ट माय 100%. ठीक गलत वो बात की बात है, लेकिन हाँ हमें एम करना है, और वो एम तभी आप कर पाओगे जब आप कंफर्टेबल होगे टाइपिंग में, और टाइपिंग में कंफर्टेबल आप एक दिन नहीं हो जाओगे. इसलिए वी हैव इंक्लूडेड असाइनमेंट्स एंड यूटीज एंड मॉक सो दैट simultaneously you can start preparing for all these things. Now when we are when we are approaching to syllabus, when we have covered at least 30 to 40% syllabus of each subject, you can start towards typing as well. पहले क्या होता है कि जब सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो हम पहले फोकस करते हैं कि हाँ स्टूडेंट नीड सम टाइम टू बिल्ड ऑन द बेसिक्स ऑफ द सब्जेक्ट, but once the basics have been built up, now it's time to move towards the typing thing. Now it's the time that you guys should become comfortable with typing. अब इसके बाद का की जो assignments और duties होंगी, you can just improve your speed. अब पहली assignment करोगे, पहला question करोगे, बहुत time लगेगा, definitely it will take time. And जब आप self study कर रहे हो, let's suppose from the summary list if you are doing all the questions, so what you can do is like for a particular chapter if we have mentioned you 20 questions, then 10 questions you practice on pen and paper, rest 10 questions just try to practice on वर्ड. इससे ऑटोमेटिकली आपको असाइनमेंट और यूटी में कोई दिक्कत आएगी नहीं. और जो मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ या कुछ और नोटेशंस भी आपने यूज करने हैं, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप नोटेशन यूज करो. आप हो सकता है कि सम ऑफ द नोटेशंस आई हैव नॉट कवर्ड, या फिर एग्जाम में आपको कोई एक डिफरेंट चीज यूज करने के लिए आज आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसको कैसे नोटिफाई करूं. इसके क्या है, आप जितने पास पेपर्स प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट एन आइडिया कि हाँ मुझे किस किस तरीके की सिचुएशंस आ सकती है. You can send any of the question that you have typed on Word for us for checking, and we can check it and can tell you okay yes this is the correct approach towards typing. So starting में once you don't get or once you don't reach to the level which is required for exam, just feel free to type your questions on Word, your past papers of any of the subject, and send to us either, as we have mentioned that you can send to us either on our Skype ID or on our mail for online typing thing. And just your
respective faculty will check it and you will get the details कि yes, this is correct from typing point of view. I'm not talking about conceptual doubts or anything. That's a separate thing that you guys know where to approach. Just for typing thing, you don't have to be concerned. अब इतना tension लेने वाली बात नहीं है कि हाँ करेंगे कैसे, इसको कैसे नोटिफाई करना है. धीरे धीरे एज एंड व्हेन यू आर प्रोसीडिंग विद द कोर्स यू विल गेट एन आइडिया. ठीक है, बट कुछ भी न्यू नहीं आपने सीखना. इक्वेशन एडिटर अगर आपको नहीं आता तो देयर इज नो नीड टू लर्न इट. वी आर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स इजी नोटेशंस दैट वी कैन यूज इन व्हाइल वी आर डूइंग द टाइपिंग. नेक्स्ट इज सपोज करो समेशन करनी है. ठीक है, समेशन ऑफ summation, let's suppose summation fx and we are doing summation from x approaching let's suppose 0 से लेकर infinity तक. तो I can simply type it summation of fx over the values of x from 0 to infinity. आपको ये अप्रोच बहुत इजी लगेगी जब आप वर्ड के अंदर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे. ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर स्पेशली फॉर CS1, अब जैसे मान लो कोई रिग्रेशन की लाइन हम बना रहे हैं, आपको पता है हम उसमें बी हैट यूज करते हैं, तो यू कैन राइट इट एज बी हैट. आपको एस वाई वाई करना है, यू कैन राइट इट एज एस सबस्क्रिप्ट वाई वाई. दिस इज यूज टू शो सबस्क्रिप्ट. आप नॉर्मल एस वाई वाई भी लिख दोगे तो भी चलेगा. ठीक है, एंड CM1 स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज मुझे प्रोबेबिलिटी डिनोट करनी है 2.75 Q 8.45. सपोजिंगली इफ दिस इज द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, यू कैन सिंपली राइट इट एज 2.75 Q 8.45. कुछ भी स्पेसिफाइड, कोई मैं अलग से कुछ यूज नहीं कर रही हूँ. सो TPX कैन सिंपली बी रिटन एज TPX. अब ये क्या होता है, LX plus T upon LX. You can write it as LX plus T upon LX. DX बनाना है, you can use DX or you can use D subscript X. IP लिखना है, we can write it as IP. DP same, we can write it as DP. AXP, you can write it like this. A due XY, जो आप बोल रहे हो वही आप लिख रहे हो, A due XY. M deferred A due X, M ये साइन बना दिया, A due X. A due XY, A due XY. So these notations are especially useful for CM1 students. ठीक है, तो जितनी भी आपकी एश्योरेंसेस हैं, जितनी भी आपकी एनिटीज हैं विच रिक्वायर स्पेसिफिक नोटेशंस, यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस. सो जो आप प्रोनाउंस कर रहे हो वही आप बेसिकली लिख रहे हो. टर्म एश्योरेंस है, नहीं समझ में आ रहा, नई नोटेशन यहाँ पे याद आ रही, कुछ भी ऐसे रटने की जरूरत नहीं है. जस्ट सिंपली टाइप इट एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टर्म एश्योरेंस, type it as variance of term assurance, type it as expected value of whole life assurance, variance of whole life assurance. So everything is in your hands. It's up to you how you are presenting it. The better you present, the less focus of the examiner would be on your typing and the more focus would be on your concepts. So ये सब चीजें देखो, टाइपिंग एक सेकेंडरी थिंग है, पहले तो हमें कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है. तो पहला आपका फोकस है कॉन्सेप्ट. अब ये नहीं कि अब आपको पता है कि हाँ टाइपिंग करनी है, ऑनलाइन एग्जाम है, आप कॉन्सेप्ट्स पे फोकस ना करके आप सीधा वर्ड डॉक्यूमेंट उठा रहे हो और आप कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ. तो अब यहाँ पर ये गलती नहीं होनी चाहिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ. स्टेप्स क्लियर होने चाहिए आपके माइंड में. स्टेप्स क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. पास्ट पेपर्स पूरे अपडेटेड आपके पास रेडी होने चाहिए. आपके पास आपने ऑलरेडी सफिशिएंट टाइम अपने पास पेपर्स में स्पेंड कर दिया होना चाहिए. एंड नाउ लेट्स सपोज जैसा आई वाज टेलिंग यू कि हाँ ठीक है, अगर 20 हमारे पास क्वेश्चंस हैं समरी लिस्ट के अंदर, तो 10 क्वेश्चंस यू हैड ऑलरेडी डन व्हाइल डूइंग वायल पेन पेपर. ठीक है, तो उन 10 में आप ऑलरेडी कंफर्टेबल हो चुके हो. दैट मीन्स उस पर्टिकुलर चैप्टर के टॉपिक से आप ऑलरेडी कवर हो चुके हो. व्हाट इज लेफ्ट इज नाउ ऑनलाइन टाइपिंग. तो रेस्ट के 10 क्वेश्चंस में हम ऑनलाइन टाइपिंग में कंफर्टेबल होंगे. उसमें भी स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चंस में यू विल टेक टाइम, you will be having some confusion. So to avoid those confusions, I just decided to prepare a video. But if still
you feel there are any notations which you want us to tell you how should we specify this, what you can do is you can just either mail or Skype. So I have been continuously repeating these things so that जब भी आपको कुछ भी डाउट हो, you can just feel free to ask that via mail or Skype. So yeah, with this video is just prepared for you guys to give you an idea that exactly how you can represent things. There are many notations which need addressing. We cannot cover all the notations obviously. I just decided to give you a hint and rest it's up to you how to present. Okay, so especially to all the freshers, just work on your concepts plus typing both. All those who had already given the typed version exam, and if you are preparing for the secondary exam, then this thing must not be new for you and you would have already been comfortable with this. Okay, so that's it from my side. In case having any issues, anything, you can feel free to contact the institute on the WhatsApp number which is mentioned. So thank you